Good morning, everyone. How are you all? And so we are starting today. What is the date today? 4th of August. And what is the day? Friday. So you know everyone, it is the spoken English class. Okay. So you have to speak only in this class. Okay. Not in my role. Your role is very important in this class. So first then we have to start with the greetings. You know everyone ki what is the greetings are there. Okay. Good morning, good afternoon and good evening. Then we have discussed in the last classes everything. Okay. So again then next introduction part, then we have done also in the last class ki how to introduce with you, like myself. If you are telling about yourself, first then your name will come, after that then your class, then after that your school, then after that your father's name and what does he do, and after that what will come, what is your mother's name and what does she do. Okay. And after that what will come, after that what will come, if you are telling about yourself, if you are introducing about yourself, so what will come, hobby. After that what will come, hobby. Okay. At the last then you just say ki thanks a lot to listening me. Okay. Then if you meet like a unknown person, अगर आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो तो आप कैसे बोलोगे, आपने लाइक डेली हम लोग हाउ आर यू कर रहे हैं ना, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे से मिलते हो, ठीक है, तो आप मुझे कैसे बोलोगे, हाउ डू यू डू, कैसे बोलोगे, अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से जाके आपको बात करनी है, ठीक है, मतलब सपोज कोई भी है आपके सामने कि आप जिसको जानते नहीं हो, ठीक है, यू डोंट नो, तो हम कैसे उससे बात करना चाहेंगे, हम सीधे उससे नहीं कह देंगे कि हाउ आर यू, हम क्या कहेंगे उससे, हाउ डू यू डू. ठीक है. हाउ डू यू डू, आंसर इज ऑल्सो हाउ डू यू डू. इसका आंसर भी क्या होगा, हाउ डू यू डू. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक हाउ डू यू डू. सपोज देन यू कम हियर, यस, लाइक यू आर अननोन, यस कम हियर. ठीक है. देन हाउ कैन वी, हाउ डू यू डू, नो, आप क्या बोलोगे, हाउ डू यू डू, आंसर इज ऑल्सो हाउ डू यू डू. हाउ डू यू डू, हाँ, यस, लाइक दिस. ओके, गो. Then after that then you will start like your talking. Okay. Then good morning and good evening after that. Okay. Then next slide is myself. Then we have done this thing in the last class. I think you all know this thing. Then again, and do you have, because why I am repeating these things, why I am repeating, because your practice is very important. Okay. अगर आप practice नहीं करोगे तो then can't speak in English. Then I am seeing in the school then all the students then they are talking in Hindi. Why? Yes. Start है. ठीक है. आप कैसे like then you are talking in Hindi every time. So why I am here? I am to teach you कि like how to talk in English. So but you start, आपको start कर देना है छोटे छोटे से sentences से. ठीक है. Myself then we have done also कि like do you have. Okay. Next slide is like do you have, कि आपके पास present में कोई चीज़ है तो how can we ask कि do you have pen, do you have water bottle, do you have Sanskrit book, do you have maths book. Then how can you give the answer, yes I have. And if you don't have then no I don't have. So questioning है, like these questions are there, then we have discussed in the last classes. Okay. Practice is very important. Why I am repeating all things, because practice is very important. Daily practice makes a man perfect. ठीक है.
स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना है कि ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, आप छोटे छोटे से सेंटेंस स्टार्ट करो। हमको यहाँ पे लैंग्वेज को रटना नहीं है कि मैम ने ये बताया था कि प्रेजेंट में कोई चीज़ है तो उसके लिए हमको ऐसे पूछना है। ठीक है, तो आपको रटनी नहीं है चीज़ें, आपको अपनी इमेजिनेशंस डेवलप करनी है। लाइक यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द डिजिटल रूम कि हाउ कैन मेक दैट सेंटेंसेस। कैन यू think? Yes, come here. You just imagine your digital class. Yes, start. Yes, just a minute. Yes. How this projector is hang on the wall and there's 2 fans in the class and there's a big monitor in the class. You just say like here. Many benches and stools are present in the class and also a whiteboard. Yes, very nice. And there are also ductlings in the class. So like this, okay? You have to imagine like a things कि आपको चीज़ों को imagine करना है कि हमको किस तरह से बात करनी है। ठीक है, तो आप imaginations आपको develop करनी है कि आप while going back your home, so what things do you see? आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? Like one garden is there, many flowers are there, it looks very nice ना। तो आपको इस तरह से अपनी imaginations को डेवलप करना है कि आपको हिंदी में बात नहीं करनी है, ओनली थिंक ओनली इन इंग्लिश। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन वी आर कमिंग। इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द थर्ड पर्सन, यू नो थर्ड पर्सन, व्हाट इज दैट थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन इज ही एंड शी। ओके, अगर आपको पूछना है कि उसके पास ये चीज है क्या इन द प्रेजेंट टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम, सो हाउ can you give the does he and she have? Okay, then answer is yes, he she has. ठीक है, अब he and she, with the he and she what we are putting? Has. And with the I, you, they and we are putting have. Okay, no, he and she does not have. Okay, उसके पास ये चीज नहीं है अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, देन दीज थिंग्स ऑल्सो इट्स डन इन द क्लास। नो, शी डज नॉट है, उसके पास ये चीज नहीं है। हैव इट्स रखने वाला है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। नो, शी डजंट है, उसके पास ये चीज नहीं है। आई डोंट हैव, मेरे पास संस्कृत बुक नहीं है, आई डोंट हैव, उसके पास शी डजंट हैव। यस, पार्डन, लाइक सॉरी, यू कैन से सॉरी, पार्डन, आई एम नॉट लिसनिंग, कि मुझे सुनाई नहीं आ रहा है। कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चंस? कैन यू रिपीट लाइक दिस? तो यू कैन से सॉरी, पार्डन प्लीज, so you have to repeat this sentence. Okay, pardon is means like, and we have done these questions. Okay, and next slide is have you action, third form. आपने have you taken breakfast? Have you taken breakfast all? So when you finish your work recently, अगर आपने अभी अभी काम खत्म किया है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव। आपके माइंड में क्या आना चाहिए? ठीक है, लाइक हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? हैव यू कम टू स्कूल? हैव यू टेकन बाथ? हैव यू टेकन मिल्क? हैव यू स्टडीड? नो, स्टडी इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क हैजंट फिनिश येट, आपका काम अभी जो है खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो देन यू कैन से नो, आई हैवंट फिनिश्ड येट, देन वी विल यूज येट इन द लास्ट। ओके, लाइक दिस, इफ यू आर टेलिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, हैज ही एंड शी टेकन ब्रेकफास्ट। अगर हम बात कर रहे हैं दो जने किसी के
तीसरे व्यक्ति के बारे में, लाइक ही एंड शी। सो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या? आपसे पूछते नहीं, आपकी मम्मी पूछती है बेटा पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, भाई ने कर लिया क्या ना। सो फॉर द फादर, ही हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट, क्या उन्होंने कर लिया? Yes, he has taken breakfast. So it's so simple things like a kid's questions. So why we can't speak in English? आप यही तो सारी बातें करते हो। मम्मी आपसे पूछती है आपने खाना खा लिया, आप पूछते हो मम्मी से कि आपने मम्मी मेरा ड्रेस आयरन कर दिया नहीं किया, लाइक यही तो सारी बातें होती है। डेली यही सारी बातें हम बोलते हैं ना। हिंदी ऑल्सो लाइक दिस, आप जैसा हिंदी में बोलते हो देन यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, आपको क्या करना है, इट जस्ट लाइक अ किडिश क्वेश्चन कि लाइक आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। बट इट्स अ लैंग्वेज इट्स अ सेम फॉर ऑल द पीपल। लाइक इफ यू आर इन द लाइक 10th standard, 11, 12, then in this class then all people can sit for the learning language, ठीक है। old people also like prep students also first, second, so all thing it's the same। हिंदी जैसे कि तूने खाना खा लिया, तब वो तो नहीं बदलेगा ना, फर्स्ट के लिए हो चाहे सेकंड के लिए हो चाहे थर्ड के लिए हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं बदलेगी। लैंग्वेज कभी नहीं बदलती ना। गिव मी रेस्पॉन्स। सो इंग्लिश ऑल्सो कि जो लैंग्वेज है वी आर लर्निंग लैंग्वेज है, नॉट अ सब्जेक्ट कि आपके पास कोई संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत ऑल्सो लैंग्वेज बट उसमें आपके पास चैप्टर होंगे, ठीक है ना, आपके पास फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, देन मैनी कंटेंट आर हियर। एंड इन द स्पोकन इंग्लिश नो कंटेंट, ओनली योर स्पीकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको बोलना है, बस बोलना है बोलना है बोलना है। आई एम सीइंग डेली देन आई जस्ट से टू यू कि टॉक इन इंग्लिश। सो वाई यू डोंट टॉक इन इंग्लिश इन द स्कूल? वाई यू डोंट टॉक इन इंग्लिश? क्यों नहीं बोलते हो? Why are you laughing? So next slide is there. Do you action first form? It's related your life. ठीक है, आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, आपके जैसे अंकल है, आंट है, आपके कोई भी है, आपसे आके यही पूछते हैं ना बेटा क्या करते हो आजकल, दिन भर क्या चल रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है, कैसा चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। तो दिस इज द रूल स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक्शन यू नो, आई थिंक ऑल आप सब लोग जानते हो एक्शन क्या होता है ना, जो भी काम हम लोग करते हैं दिस इज द एक्शन, ओके। इफ यू आर टेलिंग इन द यस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, अगर आप वो काम नहीं करते हो नो आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ओके। लाइक आप सबसे पहला काम यही करते हो, वेकअप, ओके। आप सबसे पहला काम क्या करते हो? आप जगते हो, तो जगना एंड इट्स सेकंड गेटअप। इट्स अ डिफरेंस, यू नो what is the difference between the wake up and get up? all know, like आप बिस्तर पे हो, अभी आपने अलार्म आपका बजा है ना, लाइक आप उसे थोड़ा स्टॉप कर रहे हो, फिर आप थोड़ा सा लेट गए हो, ठीक है, आपकी आंखें तो खुल गई है, ठीक है, तो देन दिस इज कॉल्ड वेक अप। सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन नेक्स्ट आई गेट अप, यू रिपीट। आप रिपीट नहीं करोगे देन यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप, आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड। जस्ट अ मिनट, यस। So every student's daily chores it's a different, so you can add one sentence in the mid between. I wake up, I get up. आप उठते हो तभी तो हाथ जोड़ते हैं ना भगवान के, जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं? उठते ही जोड़ते हैं ना, लाइक जैसे जो बड़े लोग होते हैं ऐसे अपना लाइक दे आर रबिंग हैंड्स, देन दे सी दैट लाइक दिस। हाँ, यस। What is the difference between sleep and asleep?
sleep and asleep. So it's the same thing. It's the same. Please sit down all. So I get up, I pray to God, I rinse my mouth. Repeat. I wash my face. I brush my teeth. I go to loo. I wash my hands. I wipe my hands. I take bath. I get ready. I put on uniform. I go to school. How do you come to school? By? I go to school by bicycle, by on foot, by car, by bus, by auto. Okay? So how can we put the question? Yes, please stand up. कि आप स्कूल कैसे आते हो? Ask question first. How? Did. Why you using did? It's a lack of practice. तो इस क्लास में अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के तो मत ही बैठो, ठीक है? कि देन हमको कहाँ पे डू यूज में लेना है, कहाँ डज यूज में लेना है, कहाँ डिड यूज में लेना है. अगर डिड आ गया इट्स मीन देन यू आर आस्किंग अबाउट द पास्ट. ठीक है? आप अगर डिड पूछ रहे हो तो लिसनिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस क्लास. कि अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, आप बता रहे हो कि आई लिव इन जयपुर, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया. ठीक है? तो लिसनिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि हाउ डू यू कम टू स्कूल? बाय. आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके डेली रूटीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई देन वी विल पुट डू. ठीक है? हाउ डू यू कम टू स्कूल बाय. आपके हार्ड वर्ड यहाँ पे इट्स नॉट कंपल्सरी वाइल स्पीकिंग. ठीक है? आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो, इट्स वेरी गुड, बट स्पीकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि आप बोलो, आपको जैसे भी आती है आप बोलो, टूटा फूटा, देन यू जस्ट मेक सेंटेंसेस. ठीक है? हाँ. यस. लेफ्ट. लेफ्टिनेंट. यू just sit down. I study. After that what do you do? I am just saying कि don't like you are a newborn baby for me. Okay? आप हार्ड वर्ड पूछ रहे हो, इट्स गुड. आप अपने लिए रखो वो हार्ड वर्ड, आपकी वॉकेब साउंड होगी इससे. आप क्या करोगे? आप MBA like after completing your TEL then you will just enter. Yes, please sit down. Then you can sound your vocab. Okay? But while speaking then we don't use any hard word. आप किसी को भी बात करते हुए देखते हो कि कोई भी हार्ड वर्ड यूज में करके नहीं बोलता है. ठीक है? Then I go to school. After that what do you do? I study. I stay in school. I take lunch. I play there. Okay. I come back home. बोलने लग गए ना आप, यही बुलवाना था मेरे को. ठीक है? आपको आपका बोलना ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? देन नेक्स्ट स्लाइड. लाइक इफ यू आर पुटिंग इन द वर्ब एस and es. If you are putting in the verb s or es, what is that for? For third person. Okay? You just start he. Just wait. First I'll speak one sentence, then you will repeat. He wakes up. He gets up. He prays God. He rinses his mouth. अब माय के जगह देखा ना. So we are not using any hard word in these sentences. Okay? बस आपको बोलना है. Okay? So it's a slip of your tongue.
he rinses his mouth, he washes his face, he brushes his teeth. So then we are putting in es and we are putting in this wash es. जब भी आप थर्ड पर्सन के रूटीन बताओगे, लाइक योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड ना, कोई भी ही एंड शी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप उनके रूटीन वर्क बता रहे हो कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, तो आप अगर उनका रूटीन बताते हो तो कैसे बताओगे कि सर साउंड विल कम इन द वर्ब एंड वाइल राइटिंग देन यू हैव टू पुट एस और es. ओके, he goes to loo, he washes his hands, just wait, he wipes his hands, he takes bath, he gets ready, he puts on uniform, he goes to school, he studies, he stays in school till time 1:40. He takes lunch, he comes back, he changes his dress, he takes rest, he helps his mother. So sir sound is coming. He takes snacks, he goes to park, he comes back, he washes hands, he takes dinner, he completes homework, he arranges bag, he goes to bed and sleeps. Okay, so आप अपनी मम्मी के बताओगे, मम्मी और भी एक्स्ट्रा वर्क करती हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी मम्मी क्या क्या काम करती हैं घर पे, तो देन यू कैन ऐड दीज सेंटेंसेस इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर मदर. सो नेक्स्ट इज लाइक अ क्वेश्चनिंग अबाउट द योर डेली रूटीन. आई थिंक यू नो ऑल, ओके, बट यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश. आप नहीं बोलते हो, ठीक है, नहीं बोलते हो ना, यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल. Why? Daily I am just say like this कि you have to talk in English in school, not in school, at your home also. Okay? And if you are asking about the person, आप किसके साथ स्कूल आते हो? Yes, stand up. How can we make question? It's a lack of practice. आप जा रहे हो बहुत सारे हार्ड वर्ड में, आप सिंपल सेंटेंसेस देन यू कांट स्पीक कि आप किसके साथ स्कूल आते हो. मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीपोजिशन से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है. यू कांट प्रीपोजिशन इन द स्टार्टिंग, ठीक है. सो इट्स अ लैक ऑफ प्रैक्टिस. आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड में घुस रहे हो ना, ठीक है, आप पहले सिंपल चीजें सीख लो कि हमको बोलना कैसे, बात कैसे करनी है. Talking is a different thing. So who do you action first form with? Who do you come to school with? आपने अब तक क्या सीखा था कि आपके with इधर आ जाता था, ठीक है, and whom, with whom, आप यही करते हो ना. In which class, in which class नहीं होता है. In, who, सॉरी, विद, इट्स अ प्रीपोजिशन. आपके ग्रामर में पढ़ी है आपने, प्रीपोजिशन पढ़ी है ना, तो हम प्रीपोजिशन से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं. क्या आ जाएगा? हुम नहीं आएगा, विद हुम नहीं आएगा. यहाँ पे आपको क्या बोलना है? हु डू यू गो टू स्कूल विद, हु डू यू गो टू टेम्पल विद, हु डू यू go to cinema hall with? आप किसके साथ जाते हो? आप किसके साथ डिनर करते हो? आप किसके साथ लंच करते हो? Who do you take lunch with? तो हम with whom नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में with कभी नहीं आएगा. Why? You are a very intelligent.
यस, स्टैंड अप लास्ट। आपको पूछना है कि गार्डन किसके साथ जाते हो? हाउ कैन वी? Who do you go to park with? आप स्कूल किसके साथ जाते हो? Who do you go to school with? हाँ, यस, सिट डाउन। सो इट्स अ practice is very important part. Okay, next, third person chores we have discussed. Then we have to put in the verb s or es. Okay, next, it's related the questioning about the third person. What, like if you are asking when does, वह कब स्कूल जाती है? when does she go to school? अब थर्ड पर्सन आ रहा है, देन अब डू यूज में नहीं आएगा, क्या यूज में आएगा? सॉरी, डज। ओके, एंड इन द आंसर शी गोज टू स्कूल एट, वह जाती है इतने बजे। ओके, व्हेन डज ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, वह कितने बजे स्कूल से वापस आती है? आपका भाई कितने बजे स्कूल से वापस आता है? यस, स्टैंड अप। हाउ कैन वी आस्क द क्वेश्चंस? When does your brother come back from school? यस, When does your brother get back? यस, Ashi, आप, हाँ, यस, when does your brother go to school? हाँ, यस, सिट डाउन। ठीक है, तो आपको यही आते ही क्या करना है, आप बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, तो ये वाली प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आप स्टार्ट हो जाओ, आपको जितना जितना बताया उतना तो आप बात करना चालू कर सकते हो ना। अभी तक पहले ये था कि डू यू टेक मिल्क, अब आप आगे क्वेश्चन बढ़ा सकते हो, व्हेन डू यू टेक मिल्क? आप दिन में 2 बार दूध पीते हो तो आई टेक मिल्क ट्वाइस इन अ डे। आप एक ही बार पीते हो तो once in a day, twice in a day, thrice in a day. ओके, तो इस तरह से आप बताओगे। एंड नेक्स्ट इज, इट्स रिलेटेड द थर्ड पर्सन की, वह आपका भाई किसके साथ स्कूल जाता है? आपका भाई किसके साथ स्कूल जाता है? यस, देखो आपका इट्स अ लैक ऑफ प्रैक्टिस, शी इज सेइंग डू। अब मैंने पूछा है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन आते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? डज क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चनिंग होगी तो डज से होगी। सो इट्स अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, अब बताएं, Who does your brother go to school who does your brother go with? to school with? Next is, then in the last class yesterday chores, then we have discussed. Okay, then in the it's a structure, did you action first form and yes I action second form. You know verb की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे अगर पास्ट की बात करते हैं तो देन वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I think then yesterday we have discussed this thing. In the verb, wake up का second form. So first then I'll speak. I woke up at early in the morning. I got up. I prayed God. I rinsed my mouth. I washed face. I brushed teeth. I went to loo. I washed hands. I wiped hands. I took bath. I got ready. I put on my uniform. Put. All form, ये सारी तीनों फॉर्म एक ही रहेंगी। ठीक है, I went to school. By bicycle, by car, by. I studied. So what we are putting in the wash? ed. Wash ed. Wipe. अब साउंड है, डी आ रहा है, तो आपको ड साउंड वाइल स्पीकिंग नहीं होगा, क्या होगा? ट साउंड। सो व्हाट साउंड विल कम वाइल स्पीकिंग? ट साउंड।
And if you are telling about the third person, what sound will come? Sir sound will come. And if you are telling about the past chores, past means yesterday chores. If you are telling about your yesterday chores, so what sound will come in the verb? T sound will come. Okay. I prayed. The sound will not come. लिखा हुआ ed है, आप इसको प्रोनाउंस द prayed बोलते हो, तो क्या होएगा? I prayed God. I rinsed my mouth. I washed face. Repeat. I brushed teeth. I went to loo. I washed hands. I wiped hands. I took bath. I got ready. I put on uniform. I went to school. Bye. I studied. I stayed in school till 1:40. I took lunch. I come back home. I changed my dress. I took rest. I came back home. Come, it's a slip of my tongue. ठीक है, जैसे ही आपकी गलती होती है आप तुरंत बोल दो इट्स सॉरी, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग. कम, केम, कम. ओके, तो केम इट्स अ सेकंड फॉर्म. आई केम बैक होम. आई चेंज माई ड्रेस. आई टुक रेस्ट. व्हाई यू टॉकिंग? आई हेल्प my mother. I took snacks. I went to park. I played there. I came back home. I took dinner. I completed my homework. I arranged bag. I went to bed. And slept. वॉश्ड हैंड्स. ओके, तो अब यहाँ पे आपने आई लगाया. ठीक है, अब ये सारा पास ही के लिए भी होगा, शी के लिए भी. ठीक है, आप अगर किसी थर्ड व्यक्ति के यस्टरडे चोर्स बता रहे हो तो वो भी सेम ही होंगे. ओनली यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, एंड नेक्स्ट इज questioning. Okay, how can we put the question about the past? कब आप स्कूल गए थे? कल. पास्ट की बात हो रही है ना. ओके, सो प्लीज कम वन स्टूडेंट टू टेलिंग अबाउट योर yesterday chores. Yes, come. Practice, only practice. Yes. Good morning, all of you. Listen, all. Today I'm telling about my past chores. Yesterday chores. Okay, yesterday आप chores. कल का बता रहे हो, ठीक है? I woke up around 7 o'clock in the morning. Then I got up around 7:15 o'clock in the morning. Then I went to the bathroom and freshed myself, and then I changed my dress. And I went to school for study. Then I came back home around 1:45 p.m. Then I took some rest for 1 to 2 hours. Then after that I went to my room and did some study. So okay, very nice. Yuganshi, it's good. Yes. So it's all over today. Have a nice day all.